Consider a particle P revolving along the circle of radius a with the center of the circle at the origin O of the coordinate axes. This particle is called the reference particle. Let the particle revolve with a time period t and a constant angular velocity omega. This circle is called the reference circle. Since angular velocity is constant, we can say that the particle executes uniform circular motion. After the particle has moved for some time in the reference circle, take a projection of the particle on the y-axis. Label it as P'. As particle P revolves along the circular path, its projection moves up and down along the y-axis, with the mean position as O, and the extreme ends of this diameter of the reference circle along the y-axis as the extreme positions. Now, consider the position of particle P at time t equal to 0 on the x-axis. At the end of t seconds, its position changes. The angular displacement of the particle at the end of t seconds is omega t. At any time, OP denotes the position vector of the particle P. Consider the position of the projection of the particle along the y-axis when the particle moves through an angle omega t in a time interval t. The projection of the particle moves from the origin to the position as shown in the time t seconds. The displacement of the projection of the particle y is then obtained using trigonometric ratios of the right-angled triangle thus formed. Sine of the angle omega t is the ratio of opposite sides, which is the displacement of the projection of particle P', that is, OP', represented as y, to the position vector of the particle OP, whose magnitude is equivalent to the radius a of the reference circle. Thus, we get y is equal to a sine omega t. The motion of the projection is oscillatory, and its displacement varies sinusoidally with time. Thus, the motion of P' is simple harmonic motion. If the reference particle P executes uniform circular motion, its projection executes simple harmonic motion along the diameter of the reference circle. Here, A is the amplitude of the point P' executing simple harmonic motion. In another case, consider the position of the particle P at time t equal to 0 such that OP makes an angle phi with the x-axis. It then executes uniform circular motion with angular velocity omega along the circumference of the reference circle. At the end of t seconds, the position of the particle is such that OP makes an angle omega t plus phi with the x-axis. Then, the displacement of the projection of P executing simple harmonic motion along the diameter of the y-axis can be written as y is equal to a sine omega t plus phi, where a denotes the amplitude of simple harmonic motion, which is the radius of the reference circle. As with the projection of the reference particle on the y-axis, the point marked in green is the projection of the reference particle on the x-axis.
As the particle revolves along the circular path, its projection moves to and fro along the x-axis, executing simple harmonic motion with mean position as O, and the extreme ends of this diameter along the x-axis as the extreme positions for simple harmonic motion. At time t is equal to 0, the revolving particle makes an angle phi with the x-axis. From this position, when it moves through an angle omega t in a timed interval t, its projection moves from s to t along the x-axis. The displacement of the projection executing simple harmonic motion along the diameter along the x-axis can be written as x is equal to a cos omega t plus phi, where a denotes the amplitude of simple harmonic motion, which is the radius of the reference circle. If the revolving particle began its journey from the end of the diameter, then the projection on the diameters along the y-axis, its displacement will be 0, and the initial phase angle phi would be 0. Then, displacement y is equal to a sin omega t, which is equal to 0. As you know, when a reference particle revolves along the reference circle with a constant angular velocity, omega, the projection of the particle on the diameters along the x-axis and y-axis executes simple harmonic motion. The particle executes circular motion with a constant velocity v, whose magnitude is equal to a omega, where a is the radius of the reference circle. For simplicity, if we assume the initial phase phi is equal to 0, then the two components of velocity v are v cos theta and v sin theta respectively in the directions shown. Then, the component v sin theta represents the velocity of the projection, which is executing simple harmonic motion on the diameter along the x-axis. Velocity of a particle in simple harmonic motion is equal to minus v sin theta. The negative sign is due to the direction of the velocity at that instant, which is opposite to that of the positive x-axis. If the particle has an initial phase phi, the velocity of simple harmonic motion can be written as minus v sin omega t plus phi or minus a omega sin omega t plus phi. Now, let us discuss acceleration in simple harmonic motion. Acceleration of the revolving particle will be the centripetal acceleration AC, denoted by v square by a or a omega square. This centripetal acceleration has two components: AC cos theta along the x-axis and AC sin theta along the y-axis. If the initial phase phi is equal to 0, the acceleration of the projection, which is executing simple harmonic motion along the diameter along the x-axis, is equal to minus AC cos theta, since this component is directed opposite to the positive x-axis. If the initial phase phi is not equal to 0,
The acceleration of the projection in simple harmonic motion is equal to minus AC cos omega t plus phi, which in turn can be written as minus A omega square cos omega t plus phi. On rearranging, we get minus omega square into A cos omega t plus phi. The quantity A cos omega t plus phi is the displacement x of the particle executing simple harmonic motion. Hence, the acceleration of the particle executing simple harmonic motion can be written in terms of its displacement as minus omega square x. Observe the graphs for the particle in simple harmonic motion. The first graph is displacement versus time for the particle in simple harmonic motion. The second graph is velocity versus time for the particle in simple harmonic motion. The third graph is for acceleration versus time for the particle in simple harmonic motion. From the graphs, we see that the phase difference between displacement and velocity is pi by 2 radian. The phase difference between displacement and acceleration is pi radian. ओके, तो आपको फेज समझ में आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी। अब मैं जो कि डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा ना, तो इसमें फेज और इपोक ऑफ एसएचएम दोबारा से बताऊंगा। लेकिन फेज क्या था? मेनली फेज एक ऐसी क्वांटिटी है जो पार्टिकल की पोजीशन और पार्टिकल की डायरेक्शन एक मोशन के अंदर डिस्क्राइब करती है। ठीक है, वो था फेज हमारा। और ये अगर अच्छे से आपको समझ में आया तो आप क्या कर सकते हो, अब ये समझ सकते हो। देखो, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मैं सबसे पहले लिखता हूँ। क्या लिखे थे हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन? हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, क्योंकि हमने शुरू किया था t इज इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर, y इक्वल टू 0 पर, सॉरी यहाँ y ले लेंगे। डिस्प्लेसमेंट y ले रहा हूँ तो t इक्वल टू 0 पे, y इक्वल टू 0 पे खड़ा था वो, ऐसा मान लिया हमने। मीन पोजीशन से शुरू हुआ है मोशन। ये मोशन कहाँ से शुरू हुआ? पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम मीन पोजीशन। पार्टिकल ने स्टार्ट किया, पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना? मीन पोजीशन से शुरू किया होगा उसने। गुड, क्या फर्क पड़ता है? हम उसके और भी ऑप्शन पढ़ेंगे। मीन पोजीशन से शुरू ना करे तो क्या होता है, और फला और वो बहुत सारी चीजें पढ़नी है भाई। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फील आया ना, तो बहुत एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आता है पढ़ने में। ए साइन ओमेगा टी सेटिस्फैक्ट्री, एकदम इक्वेशन सॉल्व होती है, पार्टिकल कहाँ है मालूम पड़ता है, तो मजा आता है। वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। अब मुझे बताओ कि मुझे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूँ? मैं जानता हूँ कि वेलोसिटी जो है वो डी वाई बाई डी टी होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना। अगर यहाँ x होता तो डी एक्स बाई डी टी बोलता, अगर यहाँ पर a होता तो डी ए बाई डी टी बोलता। जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसका डिवीजन होता है टाइम के साथ में। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेरिवेटिव ऑफ टाइम, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसका? डिस्प्लेसमेंट का। वो क्या देता है? वेलोसिटी। तो अगर मेरे पास ये वेलोसिटी, तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसको लिख सकता हूँ डी बाई डी टी ऑफ ए साइन ऑफ ओमेगा टी। इसका डेरिवेटिव किया मैंने तो a कॉमन है, कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट है। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी इंटू एंगल का डेरिवेटिव। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ में आती नहीं बहुत सारे लोग को। एंगल का डेरिवेटिव अलग निकलता है। अगर ये सिर्फ साइन एक्स होता तो इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाता था, एक्स का 1 होता है इसलिए। लेकिन अगर ये साइन 2x है तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस 2x इंटू 2।
ऐसा होता है। लेकिन अगर मैंने साइन एक्स लिखा तो इट इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि 1 उसके साथ लिखते नहीं अपन, ठीक है ना। एंगल का डेरिवेटिव अलग होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स उसका कोएफिशिएंट का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ओमेगा। तो मतलब मेरी वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बनी? ए ओमेगा, साइड कर लो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये बनी इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन, एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो लिख देंगे हम डी बाई डी टी ऑफ, इक्वेशन क्या हो जाएगा? ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, है ना। इसका डेरिवेटिव निकालो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए ओमेगा जैसे कि वैसे कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव एक और ओमेगा बाहर, तो क्या कर दो? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस इधर ले लो, ए ये ओमेगा से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया आपका साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन बन गई आपकी एक्सेलरेशन की। लेकिन मुझे ऐसे दिख रहा है कि ओके ठीक है भाई, एक्सेलरेशन की इक्वेशन होगी अपने घर की, लेकिन मुझे तो ऐसे दिख रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखा दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर साइड ए साइन ओमेगा टी, ओ हो ये कौन है? ये कौन है? वाई है वो तो, है कि नहीं? तो अब इसको क्या लिख सकता फिर? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, ये इक्वेशन बन गई। इसका क्या मतलब हुआ? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। क्यों? क्योंकि ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। क्या ये हमारी कंडीशन ऑफ एसएचएम है? यस, इट इज द कंडीशन ऑफ एसएचएम। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू वाई डिस्प्लेसमेंट, और वो भी माइनस साइन के साथ, क्योंकि बताते हैं दोनों भी अपोजिट होते हैं। अगर y आगे की तरफ हो रहा है तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होता है, और y अगर पीछे की तरफ तो एक्सेलरेशन आगे की तरफ होता है। तो ये हो गया अपने 3 इक्वेशन, जिसके अंदर हमने निकाला डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वेशन हम x के साथ भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, v इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा टी, या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर x के टर्म में भी आ सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ तक हुए हमारे 3 इक्वेशन, अरे है कि नहीं? तीनों इक्वेशन समझे आपको? ये वाला पॉइंट समझा? अगर इसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मास से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाता है? देखो जरा, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी मास से मल्टीप्लाई कर देने पे, एम ए इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। ये क्या है? फोर्स इज इक्वल टू माइनस, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? के, और ये हो जाता है वाई। कल इक्वेशन यही लिखे थे ना, एफ इज टू माइनस के एक्स, एक्स की जगह वाई आ गया तो क्या फर्क पड़ गया? वही तो इक्वेशन है कल जो लिखे थे। तो ये के क्यों लिखा मैंने एम ओमेगा स्क्वायर को? कल मैंने बताया था आपको मैंने कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है के बाय एम, तो के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। के जो होता है वो फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, और वो न्यूमेरिकली इक्वल टू ये होता है, के की वैल्यू जो होती है ना एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, ये इक्वेशन के बराबर होती है। तो यहाँ तक कि हमको कुछ चीज़ें पता चलती है, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम के बराबर होता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है, न्यूमेरिकल इक्वल है, ठीक है। यहाँ तक बात समझिए। चलो एक न्यूमेरिकल बताता हूँ और हम फिर हमारा लेक्चर आज तक खत्म करेंगे, ठीक है। लिखो यहाँ तक फास्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो हमने अभी जो हमने इक्वेशंस निकाली वो थी x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये तीनों इक्वेशन जो हमने निकाले अभी, ये तीनों इक्वेशन में आपको ये दिखेगा कि ये जो रिलेशन है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम, इनका रिलेशन है। मतलब मेरे पास में 3 रिलेशन आ चुके हैं, xt, vt और at, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स में आप पढ़ते हो ना ऐसे रिलेशंस, xt, vt, at पढ़ते हो, x का v के साथ रिलेशन पढ़ते हो, ठीक है, और तीनों का रिलेशन जो है एक्सेलरेशन का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ पढ़ते हो। वैसा हमको और भी देखना है इक्वेशन। अभी हम क्या करते हैं, देखो अभी हम एक और इक्वेशन निकालेंगे। ये 3 तो हमारे हो चुके, ठीक है,
ये 3 रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपने ये इसका ग्राफ भी देखा होगा एनिमेशन के अंदर, जो साइनोसॉइडल ग्राफ बताया, मैं वो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एनिमेशन में जो डाल दिया है आपको कि कम से कम आपको आइडिया रहना चाहिए, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आना चाहिए कि हमने ये पहले देखा हुआ है, ठीक है, एनिमेशन में देखा हमने। अब देखो अगर ये वाला ग्राफ है तो अभी हम निकालते हैं एक्सेलरेशन का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ, वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है, ऐसा रिलेशन आएगा। तो ये वाला रिलेशन भी निकाल लेते हैं, ये दोनों का रिलेशन, ये दोनों का रिलेशन निकाल लेते हैं। उसके बाद में कौन सा रिलेशन बचेगा, फेमस रिलेशन जो होते हैं अक्सर यही होते हैं ना, इनके ऊपर में हमारी इक्वेशंस बनेंगे, स्ट्रेट लाइन बनेगा, या तो इलिप्स बनेगा, या तो साइनोसॉइडल ग्राफ बनेगा, ठीक है, इस तरह का ग्राफ देखेंगे। तो ax और vx का रिलेशन निकाल लेते हैं। कैसे, तो देखो सबसे पहले हमारे पास में एक इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है हमारे पास में, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, है ना, ये वाली इक्वेशन है, a साइन ओमेगा टी। ऐसा मैंने इसको वेलोसिटी के अंदर में कन्वर्ट करना चाहा तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा उसको, वेलोसिटी के अंदर चेंज करना है मेरे को उसको। तो ये तो होगी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन तो यही होगा ना, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिलेशन हुआ, लेकिन मुझे चाहिए वेलोसिटी, तो मैंने ऐसा लिखा उसको, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx बाई dt। अगर हमने पहले y से इक्वेशन शुरू किया है तो अब x से लिख रहे हैं तो कोई फर्क की बात नहीं है, क्योंकि y भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट और x भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी लिख दिया मैंने v इज इक्वल्स टू v टू dx बाई dt, यानी कि मेरे पास में v का फॉर्मूला हो गया d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में a साइन ओमेगा t। ये तो पहले वाले मेथड के जैसे हुआ ना, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालो तो हो गया इसका डेरिवेटिव a ओमेगा कॉस ओमेगा t, है ना। तो ओमेगा टी का रिलेशन तो मिल गया मेरे को, वीटी का रिलेशन तो मिल गया, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं मुझे अभी ये रिलेशन और आगे बढ़ाना है। तो मैंने सोचा कि एज वी नो दैट, देखो हमको पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और अगर मैंने इसके स्क्वायर हटा दिया तो ये पूरा रूट में चला जाएगा, स्क्वायर हटा दिया मैंने तो ये चला गया रूट के अंदर, अरे बराबर है कि नहीं, ऐसे होगा ना। तो बस फिर इसको भी ऐसे लिखते हैं फिर, तो वेलोसिटी को कैसे लिख पाऊंगा मैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा एज इट इज कॉस ओमेगा टी की जगह, कॉस ओमेगा टी की जगह ये आएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह आएगा ओमेगा टी। तो ये हो गया मेरा रिलेशन। अब ये रिलेशन हो गया मेरा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं देख कर लाता हूँ, कहाँ से लाऊं, ये देखो ये इक्वेशन में से, इस इक्वेशन में से एज a इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो मैं लिख सकता हूँ इस वजह से साइन ओमेगा टी की वैल्यू, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्स बाई ए, है ना। ये वाला एक्स बाई ए को यहाँ पे रख देंगे, तो वेलोसिटी की इक्वेशन हो जाएगी अपनी a ओमेगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, स्क्वायर भी कर दिया ना मैंने उसको, साइन स्क्वायर ओमेगा टी था, इसका स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाता है ए ओमेगा, अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर बाहर जाकर ए बनेगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास में वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। ये रिलेशन है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का। आप बोलोगे सर इसमें से तो इक्वेशन समझ नहीं आ रही है, जैसे कि यहाँ पर तो x और t का रिलेशन दिखता है साइन के साथ, v और t का रिलेशन साइन के साथ, a और t का रिलेशन साइन के साथ, मतलब कि कोई साइन कॉस साइन ऐसा है रिलेशन, मतलब उनकी साइनोसॉइडल वेव बनेगी। तो इसकी कौन सी वेव बनेगी, इसकी वेव अगर आपको बनाना है तो बताता हूँ इसकी वेव कैसी बनेगी। इसकी वेव बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, और ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये ओमेगा स्क्वायर को इसके नीचे लेके आ जाओ, वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। वो एक्स का स्क्वायर भी इधर अगर ला लिया आपने तो आपके पास में क्या आ जाती है इक्वेशन, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। ये इक्वेशन आ गई। पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अगर पूरी इक्वेशन को आपने ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन बन जाएंगी आपकी, यानी कि लिखा मैंने डिवाइड बाय ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए का स्क्वायर। तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स की इक्वेशन होती है ये, ठीक है। और वो इलिप्स आपका इस तरह बनता है। तो ये देखिए ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन होगी ए ओमेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे वेलोसिटी की जो इक्वेशन थी ना,
ये देखो वेलोसिटी की इक्वेशन दिख रही है आपको, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कॉस की वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0। जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये हो जाएगा 0, और जब इसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम यानी कि इसकी वैल्यू होगी 1 तो ये हो जाएगा ए ओमेगा, और इसकी वैल्यू होगी -1 तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा। तो प्लस ए ओमेगा से माइनस ए ओमेगा तक, ठीक है, ये होती है वेलोसिटी। और आप यहाँ पे दे सकते हो इसको प्लस ए और यहाँ पे दे सकते हो माइनस ए, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगी इक्वेशन। तो देखो माइनस ए भी जब है आपके पास में तो 0 है, जब प्लस ए है तो 0 है, और जब डिस्प्लेसमेंट आपका, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये एक्स है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये वेलोसिटी है, तो आप देखेंगे कि एक्स की वैल्यू जब 0 होती है तो तब आपके पास में वैल्यू क्या मिलती है? ए ओमेगा या माइनस ए ओमेगा मिलती है, ठीक है। लेकिन आपके पास में ये वैल्यू अगर प्लस ए पर चली जाए तो आपके पास में क्या है? वी की वैल्यू कितनी है? 0, और आप माइनस पे आ गए तो वी की वैल्यू कितनी है? 0, है ना। एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर 0 हो रही है ना, बस यही तो है काम कि एक्सट्रीम पोजीशंस पर जब जाओगे तो वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। मीन पोजीशन पर एक तरफ जब वो जा रहा होगा पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, जब वो जा रहा होगा नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, बस इतना ही फर्क है उसके अंदर में, ठीक है। कॉपी इट फास्ट। तो देखिए मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन है मेरे पास में, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, है ना, ये रिलेशन है। अगर मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो एक्सेलरेशन मिलता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी, है ना। मैं आपको डेरिवेटिव से सिखा रहा हूँ ये तरीका, ये इंटीग्रेशन से भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन उल्टा जाना पड़ता है, एक्सेलरेशन पहले वेलोसिटी बाद में और डिस्प्लेसमेंट बाद में, ऐसा जाना पड़ता है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो इसको मैंने लिख दिया, माइनस पहले ही निकाल दिया मैंने साइड में क्योंकि मुझे मालूम है कल मैंने कर चुका हूँ, तो ए ओमेगा स्क्वायर यानी कि अपन इससे पहले देख चुके हैं ना ये वाला, तो ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना, ऐसे होगा। तो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साइड कर दिया और यहाँ पे लिख लिया ब्रैकेट में ए साइन ओमेगा टी, तो ए साइन ओमेगा टी कौन है? एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बस यही तो रिलेशन चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये ए है और ये एक्स है, तो ए एक्स का रिलेशन अपने को चाहिए था, वो मिल गया। और ये रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट है, ये रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आपने एक्सेलरेशन को यहाँ बताया और डिस्प्लेसमेंट को आपने यहाँ बताया तो आपका इक्वेशन क्या होगा? जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, देखो जरा, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन आता है नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे? इसका ग्राफ ऐसा, इसका ग्राफ ऐसे जाता है, इसका ग्राफ ऐसे जाता है। जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है, एक्सेलरेशन यहाँ आता है और ये नेगेटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट जब आपका पॉजिटिव होता है, समझे? ऐसे होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना माइनस ए और ये हो जाएगा प्लस ए। जब आप डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव की बात करते हो, एक्स नेगेटिव है, तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, ये एक्सेलरेशन आता है और एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस तरह का बनता है, ठीक है। सेम ग्राफ होता है फोर्स और, क्योंकि एफ अगर इसको मास से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बन जाएगा? इधर फोर्स बन जाएगा और इधर क्या बन जाएगा? एफ इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी कि एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, है ना, ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन में आप देखेंगे तो एफ है और ये एक्स है, यही ग्राफ होता है। यहाँ पर इसको और फोर्स भी ले सकते हैं आप इधर, ये डिस्प्लेसमेंट के साथ तो फोर्स का ग्राफ और एक्सेलरेशन का ग्राफ एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है। तो हमारे पास में ग्राफ किस टाइप के आए हैं? देखो, जब आपने एक्स टी ये ग्राफ देखा तो ये आया साइन ग्राफ, है ना, साइन कर्व आया, ये साइन कर्व। जब हमने वीटी ग्राफ देखा तो वो ग्राफ अभी और डिटेल में जाएंगे हम, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको समरी क्या है। ये कोसाइन कर्व है, ये कोसाइन कर्व है। एटी का देखेंगे तो साइन कर्व है ना, और वो इससे पाई डिग्री आगे, पाई रेडियन आगे चलता है, यानी कि उनमें फेज डिफरेंस होता है पाई का। एक्सप्लेन करूंगा, वो ग्राफ अभी बनाएंगे ना अपन, तब फिर से एक्सप्लेन करूंगा ओमेगा टी के साथ बताकर, लेकिन आपको जस्ट एक समराइज कर रहा हूं। फिर हमने देखा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, तो ये हो गया एलिप्स, और उसके बाद में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, और ये हो गया अपना स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन हो गया। अगर आप जो है तो देखते हो कि एलिप्स आपकी इक्वेशन है, एलिप्स के अंदर में जो तो जनरल जो फॉर्मूला होता है, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये वाली जो इक्वेशन होती है ना एलिप्स की, अगर इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो है ए और ये बी, ये क्या होते हैं, सेमी माइनर और सेमी मेजर एक्सिस होते हैं। अगर आपने ये दोनों की वैल्यू को सेम कर दिया तो क्या हो जाता है मालूम है, यहाँ से सेम हो जाता है, ये कॉमन निकल कर इधर चला जाता है और आपके पास में सर्कल की इक्वेशन आ जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बोलकर, तो ठीक है ना, वो सर्कल का रेडियस आ जाता है। ये सेमी माइनर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस अगर आपने है ना लिया हुआ, तो वो अगर दोनों भी सेम हो गए, यानी कि एलिप्स अगर आप देखेंगे तो ये इलिप्स था, ठीक है, इसके अंदर में ये समझो ये बी था समझो और ये ए था, ऐसा कुछ तो था, बाद में अगर ये दोनों की वैल्यू सेम होगी तो कैसा बन जाएगा वो, एक सर्कल बन जाएगा ना, ठीक है, अगर ए और बी की वैल्यू सेम होगी तो सर्कल बन जाता है वो, इस तरह से। तो आपको ये समझ में आता है कि हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन है और सर्कल की इक्वेशन बन सकती है, और जब ये दोनों भी सेम हो जाएंगे पॉइंट्स, ये दोनों भी पॉइंट सेम हो जाएंगे तो सर्कल की इक्वेशन बनेगी। ऐसा तो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस, के कर्व्स कैसे बनते हैं। तो यहाँ तक के था कर्व का केस। अभी क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तो क्वेश्चन ले लूँगा मैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो है बहुत सारे क्वेश्चन हमको डिस्कस करने हैं टाइम रिलेटेड, जो कि हमारे एसएचएम को दर्शाएगा कि एसएचएम एक्चुअली जो होता है, एसएचएम जो होता है प्लस माइनस वगैरह के साथ में सब जगह, तो वेलोसिटी कहाँ ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है, कहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है, उसके ऊपर में सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। और उसके अंदर में ये रहेगा कि आपको आधा टाइम चलने के लिए, मतलब आपका जो एम्पलीट्यूड है उसका आधा एम्पलीट्यूड चलने के लिए कितना टाइम लगता है, 3/4 एम्पलीट्यूड चलने के लिए कितना टाइम लगता है, एक एम्पलीट्यूड चलकर आने के लिए कितना टाइम लगता है। ऐसे ये बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तो अभी पहले एक देखो, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर। देखो चलिए देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स, या तो एसएचएम बता रहे होंगे, या तो पीरियोडिक मोशन है बट एसएचएम नहीं है, या तो पीरियोडिक मोशन ही नहीं है। तो ऐसा फंक्शन दिए हुए, पहला फंक्शन है हमारा साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करके एक सिंगल फंक्शन बनाना है। मेरा काम ऐसा होना चाहिए कि एक सिंगल फंक्शन बनाऊं मैं, और इक्वेशन मेरी सिंगल एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू, या x इज इक्वल टू, इसमें x दिया गया, कुछ भी नहीं दिया ना, चलो x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस या माइनस फाइव। इनिशियल फेज प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है ना, 40 डिग्री आगे खड़ा हो, 30 डिग्री पीछे खड़ा हो, 60 डिग्री आगे खड़ा हो, 30 डिग्री पीछे खड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है। तो वो हो जाएगा, ये वाला आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। हमको ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड जैसी बनानी है, तो हम क्या करेंगे, देखो जरा, एक फॉर्मूला याद है अपने को, क्या फॉर्मूला देखो, साइन ए माइनस बी, क्या होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना, ये रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन याद आया। तो रिलेशन को देखकर मुझे याद आया कि देखो साइन ओमेगा टी है मेरे पास, साइन ओमेगा टी है मेरे पास, उसकी जगह मुझे कोई और लेके आना है, कॉस के साथ कुछ तो भी लेके आना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे करना है, कॉस बी लेके आना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा इस इक्वेशन को, x इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये एक हो गया आपका, ओमेगा टी बोले तो ए हो गया आपका, ये समझ लो। अब मुझे लाना है b का टर्म, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ √2 से, तो √2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 साइन ओमेगा टी माइनस 1/√2 कॉस ओमेगा टी। मैंने दो बार नहीं लिखा, चाहे तो दो बार अपन लिख सकते हैं। अगर आपने ब्रैकेट नहीं दिया तो √2 इंटू 1/√2 साइन ओमेगा टी, √2 इंटू 1/√2 कॉस ओमेगा टी, √2 कॉमन निकल गया, तो ये हो गया आपके पास में इक्वेशन। अब मुझे ये पता है कि साइन ऑफ π/4 और कॉस ऑफ π/4 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है ना, साइन π/4 कॉस π/4 45 डिग्री है ना, ऐसे 1/√2 होती है। तो मैं क्या करूंगा, जहां मुझे साइन की आवश्यकता है मैं वहां साइन लगा दूंगा, देखो 1/√2 की जगह, और जहां मुझे कॉस चाहिए मैं वहां कॉस लगा दूंगा। साइन के साथ साइन क्यों लेना है, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, है ना, वो वाला इक्वेशन भी बनता है आपके पास में, ठीक है, सही है, इक्वेशन बनता है। तो फिर देखो, अब मेरे पास साइन पहला टर्म है, कॉस दूसरा टर्म है, इसके लिए मैं क्या लेके आता हूँ, ये देखो, ये कैसे चेंज करता हूँ मैं, और ये दोनों ए के टर्म्स में ना, इसीलिए अपन यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, सिर्फ यही लगा सकते हैं, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पुटिंग करता हूँ, देखो ध्यान से देखो, एक्स इक्वल टू साइन ओमेगा टी तो है मेरे पास, सॉरी ये वाला देखो इक्वेशन, √2
ब्रैकेट में जाएंगे तो 1/√2 की जगह क्या रखूँ मैं, तो cos ओमेगा टी मेरे पास, sin ओमेगा टी मेरे पास पहले से है, तो मैं लिखता हूँ sin ओमेगा टी, और 1/√2 की जगह मैं रख देता हूँ यहाँ से cos π/4, तो ये आ गया cos π/4। यहाँ पे लिखा माइनस cos ओमेगा टी, और 1/√2 की जगह पे रख दूंगा मैं sin π/4। क्या बना ये इक्वेशन देखो, sin A cos B माइनस cos A sin B, है ना, ये इक्वेशन बनी ना। तो इस इक्वेशन का फिर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, √2 टाइम्स sin A माइनस B, तो इसको लिख देंगे साइन ऑफ A, कौन है इसमें से, ये A है और ये B है, ठीक है, ऐसा है A और ये B है, तो क्या आ जाएगा ओमेगा टी माइनस π/4, और ये इक्वेशन तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसी है, देखो माइनस π/4, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड जैसी इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ SHM, ये SHM की इक्वेशन है। इसमें से टाइम पीरियड कितना होगा, चलो निकालते टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड होगा ओमेगा, टाइम पीरियड ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/कैपिटल T, देयरफॉर कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा, ये होगा टाइम पीरियड उसका, ठीक है, ये टाइम पीरियड यहाँ होता है, π/4 तो कांस्टेंट है उसका, टाइम पीरियड ये होगा आपका, ठीक है। इस तरह से हम इक्वेशन निकालते हैं, और भी बताऊंगा मैं आपको। देखो सेकंड इक्वेशन देखते हैं, चलो दूसरा क्वेश्चन है sin³ ओमेगा टी, क्या ये SHM की इक्वेशन है, ऐसे पूछा है हमको, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को इसको SHM के फॉर्म में लिखना है, तो अपने को देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से एक फॉर्मूला मालूम है, sin³ थीटा इज इक्वल टू 1/4 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू sin³ ओमेगा टी, जब इसको वैसे टर्म में लिखा जाएगा तो ये आ जाएगा 1/4, ये हो जाएगा आपके पास में 3 sin ओमेगा टी माइनस साइन ऑफ 3 ओमेगा टी। अगर ये इक्वेशन को मैंने ऐसे लिखा 3/4 साइन ओमेगा टी माइनस 1/4 साइन ऑफ 3 ओमेगा टी, इस फंक्शन में देखो ये SHM नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है। देखो इसकी ये फ्रीक्वेंसी अलग है 3 ओमेगा है, और ये फ्रीक्वेंसी इसकी ओमेगा है, मतलब ये दो अलग अलग SHM का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 SHM डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले, एक 3 ओमेगा से और एक सिंगल ओमेगा से। मतलब एक सिंगल ओमेगा वाला अगर ऐसा फंक्शन करता है, देखो सिंगल ओमेगा वाला, मैं आपको ये वाला फंक्शन तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में दिखाने वाला हूँ, ये ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो अगर सिंगल ओमेगा अगर होता है फ्रीक्वेंसी, तो ये ऐसा ग्राफ बनता है। तो समझो हम फिर सिर्फ एक ही साइकिल लेते हैं, देखो ये एक साइकिल होती है यहाँ तक, इसको बोला जाता है 1 साइकिल, एक क्रेस्ट प्लस एक ट्रफ, ठीक है, एक क्रेस्ट एक ट्रफ मिलाकर एक साइकिल बनती है। तो हम उसके अंदर बोलेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, तो ये आया, ठीक है, लेकिन अगर दूसरे की फ्रीक्वेंसी है 3 ओमेगा, तो वो कितना आ जाएगा, इतने ही समय में 3 साइकिल बैठेंगे उसके, ऐसे, मतलब ऐसा 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे 3 साइकिल उसके बैठते हैं, तो ये अलग अलग दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, समझे बात को। देखो अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, 3 cos π/4 माइनस 2 ओमेगा टी, ये इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन है तो इसको SHM के फॉर्म में लिखते हैं, x इज इक्वल टू 3 cos ऑफ, और अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो 2 ओमेगा टी माइनस π/4, है ना, 2 ओमेगा टी माइनस π/4, क्यों, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा के बराबर ही होता है, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। और इसका अगर देखेंगे आप टाइम पीरियड कितना आने वाला है, तो आप निकालेंगे टाइम पीरियड 2π/ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 ओमेगा, तो आप इनका लिख देंगे इसको 2π/2 ओमेगा, दैट इज इक्वल टू π/ओमेगा। दिस इज योर टाइम पीरियड ऑफ दिस इक्वेशन। कैपिटल टी की इक्वेशन होती है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से लेकर के रख देना है आपने, बस इतना ही है, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। चलो देखते हैं फोर्थ, लिखो फास्ट।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos ओमेगा टी प्लस cos 3 ओमेगा टी प्लस cos 5 ओमेगा टी, क्या ये पीरियोडिक है, एसएचएम है, या नॉन पीरियोडिक है बट एसएचएम नहीं है, या पीरियोडिक भी नहीं है? तो एक्चुअली ये एसएचएम नहीं है, लेकिन ये पीरियोडिक फंक्शन है। इसमें 3 फ्रीक्वेंसी अलग अलग ऑपरेट कर रही है। ये सिंगल फंक्शन नहीं बन सकता ना अपना, जो सिंगल बन सकता है वो एसएचएम हो सकता है, लेकिन ये सिंगल फंक्शन नहीं बनता, ठीक है, इसीलिए एसएचएम नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये 3 फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहा है। मतलब 3 फ्रीक्वेंसी कौन से होंगे? देखो पहले की फ्रीक्वेंसी अपन बनाएंगे ऐसी, ये पहले की फ्रीक्वेंसी हुई समझो, ये ओमेगा टी है ना। दूसरे की फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा, मतलब इसके अंदर मुझे 3 बिठाने हैं, ऐसे ना। ऐसे 3, और तीसरे वाले केस में मुझे 5 बिठाने हैं, 5 साइकिल्स। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ तक हो जाएगी 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो ये 5 साइकिल बैठे इसके अंदर में। तो ऐसे ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ इतने सारे एसएचएम का कॉम्बिनेशन, ये इंडिविजुअल एसएचएम हो सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल एसएचएम है वो, लेकिन इंडिविजुअल एसएचएम का कॉम्बिनेशन है। तो इसको बोला जाएगा, ये 4th वाला फंक्शन ये एसएचएम नहीं है लेकिन पीरियोडिक है, ठीक है। और लास्ट केस एक देख लेते हैं, e रेस टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, e रेस टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और टी स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो कि इस तरह बढ़ता है, इस तरह बढ़ता है, ठीक है ना, ऐसे होता है। और ये e रेस टू माइनस आ रहा है बोल के तो ये डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है ना, ये डिक्रीज होता है ऐसे, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज वाला टर्म है ये। एक्सपोनेंशियल अगर डिक्रीज होता है ये ऐसे बता सकते हो, या फिर एक्सपोनेंशियल डिक्रीज को ऐसे बता सकते हो आप, ठीक है, ऐसा बताया जा सकता है। मतलब बहुत सारे तरीके उसको शो करने के, आप क्या बताना चाहते हो डिपेंड करता है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मेनली क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अपन इसके बारे में क्या लिखेंगे, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज नॉट एसएचएम, और या लिख सकते हैं आप इसको कि ये नाइदर एसएचएम है नॉर पीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक, इट्स एक्सपोनेंशियल। लेकिन एक्सपोनेंशियल में एक फंक्शन ऐसा होता है जो कि पीरियोडिक भी होता है और एसएचएम भी होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कल के लेक्चर में, तो इंतजार कीजिएगा उसका। तब तक के लिए धन्यवाद।